Reza. Okay, Jamin. Okay, Jamin. One by one paragraph. Okay. Okay, we are starting with the chapter number 4, that is national movements in India. And first of all, we will read introduction. चलो जामिन, आप read कर सकते हैं. I will dictate and explain you one by one. Okay. So number 4, national movements in India. Introduction. During their stay in India, Britishers become familiar with the political condition of India. The British East Indian Company took advantage of the political disputes or internal weakness of India and from Data 1757 its internal weaknesses. of India and from 1757 AD after a creeping in a Bengal of the revolt of Revolt. To the 1875 revolt of. revolt of 1875 AD. It established it su- supreme Supremacy. Supremacy supremacy over India. over India in its 100 years of a rule. In order Okay. to maintain this supremacy, Supremacy. the English gradually developed a strong administrative structure in the country. Through this administrative structure, common laws, common administration and a legal system according to the British system came into existence. Yet the English residing in India established Residing in India. established such laws and administration that England would get more benefits at the cost of India. They made England Prosperous. Prosperous. prosperous and exploited India the most. Okay, good, chalo. Now I'm explaining you the introduction. First of all, national movements in India. Okay, national means whatever the movements arise in our nation will be declared here, and we are studying this chapter to know that what type of movements at the time of Britishers will occur. मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे तब कैसी कैसी मूवमेंट्स हमारे नेशन में हुई थी, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला, ड्यूरिंग दियर स्टे इन इंडिया ब्रिटिशर्स बिकम फेमिलियर, मतलब जब यहाँ पे ब्रिटिशर आए इंडिया में तो ब्रिटिशर्स बिकम फेमिलियर विद द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया. ब्रिटिशर्स विल बिकम फेमिलियर मतलब क्या कि वो लोग उन लोगों को हमारे वीकनेसेस के बारे में पता चल गया, वो फेमिलियर हो गए कि हमारे यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल जो कंडीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशंस है वो कैसी है. द ब्रिटिश East India Company took advantage of political disputes or internal weaknesses of India, and from 1757 AD, after skipping into Bengal, to the revolt of 1875 AD. फर्स्ट लाइन में क्या बोला कि वो लोग पहले इंडिया में आए और वो लोग फैमिलियर हो गए, उन लोगों को पता चल गया कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो उनमें वीकनेसेस हैं, ठीक है. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, हमारी जो पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी उनका एडवांटेज उठाया, मतलब फायदा उठाया. जैसे कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट, इंटरनल वीकनेसेस ऑफ इंडिया, मतलब हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स के बीच में जो वीकनेसेस थी, जो भी सारे इंटरनल इश्यूज थे उसका फायदा उठाया. एंड फ्रॉम 1757 आफ्टर कीपिंग टू बंगाल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1875, मतलब वो लोग जैसे ही बंगाल में एंटर हुए उन लोगों ने बंगाल को अपने साइड लेने का इरादा बना दिया. इट एस्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी ओवर इंडिया इन इट्स 100 years of rule. In order to maintain this supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in the country. वो लोग क्या करना चाहते थे, वो लोग अपना हुकूमत यहाँ पे जमाना चाहते थे, मतलब वो लोग पूरा इंग्लैंड के सारे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे लेके आने चाहते थे. इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो वीकनेस थी उनको पकड़ रहे थे, उसका फायदा उठा के यहाँ पे नए अपने हिसाब से अपनी सुप्रीमेसी, अपने रूल्स फॉलो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में एस्टैब्लिश करना चाहते थे. Through this administrative structure, common laws, common administration, and a legal system according to the British system came into existence. जैसे ही वो लोग बंगाल में एंटर हुए उन्होंने क्या किया, अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि
उसमें थोड़े रूल्स बनते हैं, थोड़े लॉज, थोड़े कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, एक सिस्टम होती है जिसे पूरा पॉलिटिक्स चलता है। तो उन्होंने क्या किया, लीगल रूल्स, लीगल स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम्स अपने हिसाब से, ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे वो लोग लेके आए। येट द इंग्लिश रिसाइडिंग इन इंडिया एस्टेब्लिश सच लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंग्लैंड वुड गेट मोर बेनिफिट। अब वो लोग को तो पता था कि हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वो लोग क्या किए कि अपने हिसाब से लॉस, अपने हिसाब से रूल्स बनाए, अपने हिसाब से लीगल सिस्टम बनाई उन्होंने। तो उन लोगों को ऐसे सिस्टम्स बनाने बनाने थे जो उनको, इंग्लैंड को ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्परस एंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया द मोस्ट। जैसे कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाए, उनकी इंग्लैंड की सिचुएशन अच्छी हो जाए, ठीक है। मतलब वो लोग इंडिया में आके पूरे इंग्लैंड के ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश सिस्टम्स, उनके लॉज यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ओके, ऑल आर हियर, आई एम डन विद फर्स्ट पैराग्राफ। गाइस प्लीज आंसर, डू यू अंडरस्टैंड? Yes. आपको समझ में आ रहा है? Yes. ओके, एनी डाउट्स इन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ? एनीवन हैव डाउट? अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा? प्लीज आंसर No, गाइस। ma'am, no doubt. Okay, next, who can read? Who can read the Great National Uprising of 1857? Anyone can read? I know, actually, more students are present here. I can see that. Please have a gut and come. इसमें क्या है यार, रीड तो कर सकते हैं ना आप लोग। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन मेरे साथ ज्यादा रहेगी, because even I am new to you all. Hello. Yes, ma'am, I will read. Okay, can you please? What is your name? Mohammed Reza. Okay, no issue. Better read it. The Great National Uprising of 1857. Better, Some it's of the uprising. factories It's uprising, not uppressing. It's uprising. uprising of 1857. Some Okay. of the factors that caused the uprising of 1857 were political di- uh, dissatisfaction, Dissatisfaction. dissatisfaction, economic exploration, social and religious factors, military factors, and immediate reasons like introduction of the infield rifle in the army. Okay, okay, Longer wait. I'll dictate and explain you a one by one line, okay? Some of the factors that caused the uprising of 1857 were political dissatisfaction, economic exploitation, social and religious factors, military factor, and immediate reason like induction of Enfield rifle in the army. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो फैक्टर्स थे, ऊपर हमने अभी अभी डिसाइड, मतलब अभी अभी हम लोगों ने कन्वर्सेशन किया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने क्या किया, हमारे पॉलिटिक्स कंडीशन, हमारी पॉलिटिक्स सिचुएशन का फायदा उठाया। तो यहाँ पे 1857 के बाद मतलब वो लोग फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे ऐसे फैक्टर्स विच कॉज द अपराइजिंग ऑफ 1857 पैर बस, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे मतलब जिससे वो लोग हमारा फायदा उठा रहे थे। तो सबसे पहला फैक्टर था पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन, मतलब क्या कि हमारी जो पॉलिटिशियंस थी उसमें ही किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं था, अंदर अंदर ही रायट्स थे, अंदर अंदर ही इश्यूज थे। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, अब इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या कि हमारे यहाँ पे जो इनकम का सोर्स है उसमें एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। यहाँ पे सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स मतलब रायट्स थे, उनके बीच में इश्यूज था। मिलिट्री फैक्टर रिलेटेड हमारे बहुत कम कम सोर्सेस थे हमारे पास मिलिट्री रिलेटेड। एंड इमीडिएट रीजंस लाइक इंडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, मतलब उस वक्त जब एनफील्ड राइफल आ रहा था 1857 में, तब की ये सिचुएशन हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स उन लोग उस टाइम के हमारे यहाँ पे आके हमारे वीकनेसेस को दबा के वो लोग हमारे ऊपर राज करना चाहते थे। यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को हटा के अपने सिस्टम, अपने लॉज, इंग्लैंड को जैसे फायदा हो वैसे इंट्रोड्यूस करने वाले थे। चलो नेक्स्ट।
Mangal Pandya was the first leader of the uprising. Several Yeah. revolutionaries like Nana Sahib, Tatya Top, Raja Kwar Singh, Rani Lakshmi Bai, Bahadur Bahadur Shah Zafar, Yes. Bahadur Zafar, etc. took part in it. Beta, your voice is really going down and it is cut in between. Can you uh, read it clearly? Maybe some sound mistake or put volume really low. Yes, ma'am. Hello, Yes. read it. No issues. Okay, ma'am. The uprising of 1857 produced many effects, among which are the end of the company role in India and the role of the British Crown for the failure of the 1857 uprising अरे यार, are आप एक लाइन भूल गए। बीच में खा गए आप एक लाइन। सुबह सुबह खाना नहीं खाया था क्या आपने? कुछ नाश्ता नहीं किया क्या? हेलो। yes, ma'am. You forgot one line, beta. Rule of the British Crown, ruled by which was ruled by Queen Victoria. आप डायरेक्ट नीचे की लाइन में आ गए। नो इश्यूज, रीड इट। मैं जस्ट आप लोगों के साथ न्यू हूं ना, तो कन्वर्सेशन कर रही हूँ बीच बीच में, ठीक है? Okay, ma'am. Ruled by Queen Victoria, changed the change in administrative, military, politics are Policies. the reasons responsible for the failure of the 1857 uprising are the bringing of the uprising before the planned time, lack of central leadership, insuffi- uh, Insufficient. insufficient insufficient and Beta, unsophisticated beta, it's unsophisticated. unsophisticated Unsophisticated. weapons. Yes. Importance of self central then claim revolutionaries, lack of civil and organized leadership, etc. You you will already studied this in detail in the province class. Did you this all these topics in previous class? Right? Is it Yes, ma'am. okay now? First time already about the factor कौन Ma'am, से वीक थे ma'am, जिसकी your वजह से वो voice लोग is cutting. ओके ओके मैंने डिस्कस किया था कि ऐसे कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे वीकनेसेस थी। ऐसे ऐसे कुछ फैक्टर्स थे जो वीक थे, ठीक है? जो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो वीकनेस पकड़ के हमारे यहाँ पे वो लोग अपनी सिस्टम, जैसे कि इंग्लैंड को फायदा हो, वो लोग अपने लॉज अपने सिस्टम यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो इन लोगों के सामने खड़े रहने के लिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे उस टाइम पे 1857 के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या, क्रांतिकारी, ठीक है? तो यहाँ पे उन लोगों के नाम दिए थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े थे। वो लोग कुछ करना चाहते थे हमारे इंडिया के, जो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े थे कि नहीं, वो उन लोगों का स्ट्रक्चर, उन लोगों के लॉज, उन लोगों के पॉलिसीज, उन लोगों की लीगल सिस्टम यहाँ पे नहीं आने देंगे, ठीक है? तो कौन थे ऐसे? फर्स्ट वन वाज द फर्स्ट मेजर ऑफ अपराइजिंग वाज मंगल पांडे। एंड दूसरे बहुत सारे थे जैसे कि नाना साहेब टाटिया टॉप, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, एक्सेट्रा।
all took part in this great national uprising of 1857. The uprising of 1857 produced many effects, among which are the end of the company rule in India and the rule of British Crown ruled by Queen Victoria, change in administrative, military, social, religion policies. अब उस वक्त क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपनी सिस्टम लाई तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो कंपनी के रूल्स थे इंडिया में, मतलब कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। उनमें क्या दिखाई देने लगा, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देने लगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अपना रूल यहाँ पे कायम कर रहा था, अपना रूल चलाना चाहता था और उसने यो एस्टैब्लिश भी कर दिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, कंपनी के रूल्स डे बाय डे चेंजेस करने लगे वो लोग। इंडिया में जितने भी कंपनीज के रूल्स थे वो चेंज होने लगे, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होने लगा, सिस्टम में चेंज होने लगा, मिलिट्री में चेंज होने लगा, और सोशल मतलब हम जो सोशल पब्लिक है उसकी पॉलिसीज में, रिलीजन्स की पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस आने लगे। वो डे बाय डे मतलब जो पॉलिसी इंडिया ने फ्रेम की थी वो एंड होने लगी, और जो ब्रिटिश इंग्लैंड के हिसाब से फ्रेम कर रहे थे उसमें वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और सक्सेस होते जा रहे थे। द रीजन रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फेलियर ऑफ द 1857 अपराइजिंग, मतलब हमारे साइड से हम फेल हो रहे थे, उसके क्या क्या रीजन है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग बिफोर द प्लान टाइम, मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, मतलब ब्रिटिशर्स ने आके पहले ही बिफोर हमारे कुछ प्लान के, भाई हम हमारे हमारे जो मूवमेंट्स है इंडिया के, हमारे जो नेशनल है, हमारे जो नेशन है उसको हम आगे लाए, वो प्लान के टाइम से पहले ही आके उन लोगों ने अपना पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, फर्स्ट रीजन वाज कि प्लान के टाइम से, ठीक है। सेकंड रीजन की लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, यहाँ पे ऐसा कोई लीडर नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई लीडर, अच्छा लीडर नहीं था जो पूरे स्ट्रक्चर को बना के हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वीपन्स, हमारे पास उस टाइम पे ऐसे हथियार भी नहीं थे कि हम लड़ सके, इनसफिशिएंट थे हमारे पास, ऐसे कोई वेपन्स नहीं थे, बहुत कम वेपन्स थे हमारे पास। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट देन द नेशनलिज्म अमंग्स रिवॉल्यूशनरीज। अब क्या है इसमें, फोर्थ रीजन ये है कि यहाँ पे जो हमारे खुद के लोग हैं पॉलिटिशियंस के, वो लोग यहाँ पे नेशनलिज्म में खुद कम इंटरेस्ट रखते थे, और क्रांतिकारियों के हिसाब से ऐसा था कि उन लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए था। तो ये भी एक वीकनेस था कि ब्रिटिशर्स ने पकड़ दिया था कि हमारे पॉलिटिक्स में यहाँ पे दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बिल्ड अवर नेशनलिज्म। लैक ऑफ सुटेबल एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप एक्सेट्रा, मतलब हमारे पास बहुत इनसफिशिएंट, सूटेबल, लैक ऑफ सूटेबल लीडरशिप थी। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई लीडरशिप नहीं थे, लीडर नहीं थे जो ऑर्गेनाइज वेल स्ट्रक्चर बना सके हमारे नेशनलिज्म को। ओके, नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। ओके, अंडरस्टैंड? हेलो, एटलीस्ट आंसर नहीं है तो मैं एक पैराग्राफ कंप्लीट करूँ तो आप मुझे आंसर तो दे ही सकते हैं। हेलो Yes, ma'am. हेलो, okay, now who can read? Okay, any doubts in introduction or the great national uprising of 1857? Hello, guys, can you hear me? Yes. Okay, कौन रीड करेगा? किसी को डाउट है तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं इन बिटवीन, अपना नाम रिपीट करके, क्योंकि मैं आप सबको अभी जानती नहीं हूँ ना। एनी डाउट्स? किसी को डाउट्स है? No. ओके, हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स। कौन रीड करेगा? I. अब आई मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब आई Ishan. नाम है या? यस, ओके, Ishan. ग्रेट। ओके ओके, चलो ईशान रीड इट। जस्ट रीड फर्स्ट थ्री लाइन, अगेन थ्री लाइन, क्योंकि बहुत बड़ा टेक्स्ट है ना, तो मैं अच्छे से ट्रांसलेट करके आपको समझाती रहूंगी। ठीक Okay. Boycott है, and ओके। indi boycott boycott and indigenous movements. Boycott and indigenous movements along with Bang Bang movement 1905 was one of the important
events of the Indian national movements because of the divide and rule policy as a result of the Britishers' Machiavellian policies, boycott and indigenous movement get an impetus. ओके 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 यहाँ पे बॉयकॉट एंड इंडिजियस मूवमेंट्स का क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या? बॉयकॉट मतलब फॉरेन, मतलब हमारे नेशन के बाहर, कंट्री के बाहर से जो सारी चीजें आती है ना, मतलब फॉरेन गुड्स, फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन कंपनीज, उनको हमको बंद करना है। जैसे कि अभी आप सबको पता होगा कि स्वदेशी भारत का है, मतलब जो भी है इंडिया की प्रोडक्ट्स यूज करो, इंडिया की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करो, ये वही उसी टाइम का है। 1905 में एक मूवमेंट आया था कि फॉरेन से जो भी चीजें आ रही हैं, हम लोगों को वहां की सारी चीजों का, फॉरेन गुड्स शुड बी स्टॉप टू यूज, एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स मतलब स्वदेशी, हमारे यहाँ की, इंडिया की, नेशनल की, हमारे नेशन की जो चीजें हैं उनको उनको यूज करना है, हमको यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। हमारे इंडिया को ऊपर लाने के लिए, अपराइजिंग करने के लिए हमको हमारे स्वदेशी चीजें सब मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमको हमारी चीजें यूज करनी पड़ेगी, न कि हमको फॉरेन कंपनीज को यहाँ के लाके उनके साथ बिजनेस करना है। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ मैंने आपको हेडलाइन समझाई, इसमें पूरा डिटेल में दिया है। द फर्स्ट indigenous movement along with the Bangang movement, that is 1905, was one of the important events of the Indian national movement। ये सबसे बड़ा पॉइंट था जो जो एक्चुअली गवर्नमेंट को लेना चाहिए था, कि बाहर की जो सारी फॉरेन गुड्स है वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए थी, और हमारी स्वदेशी चीजें, स्वदेशी नेशनल, हमारे नेशन की जो चीजें हैं उनको ज्यादा प्रोड्यूस करके यहाँ पे उनकी ज्यादा यूज करनी चाहिए थी। इवन बॉयकॉट एंड इंडिजियस मूवमेंट ये यहाँ इट वॉज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में गिनी जाती है। बिकॉज ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटिशर्स मैचिवेलियन पॉलिसीज, बॉयकॉट एंड इंडिजियस मूवमेंट कैट एंड एम्पेटस। पर हमारे यहाँ पे क्या था? डू यू ऑल नो अबाउट द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? हेलो guys, do you know divide and rule policy? Yes, Yes, Okay, ma'am. what is being by divide and rule policy? आप एक सेंटेंस में मुझे आंसर दे सकते हैं? कोई भी चलेगा, हिंदी, गुजराती, वट एवर योर कन्वीनियंट लैंग्वेजेस, आपको जिस लैंग्वेज में कन्वीनियंट रहता है। क्या मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी क्या? divide Pakistan from India. यस, ग्रेट। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में क्या था, जो मतलब वो बीच में आपको पता है तो कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे वहाँ पे तब के समय में 1905 में क्या था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑलरेडी थी, मतलब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन उससे नहीं थे, तो उन लोगों ने उसका फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेशनल पॉलिसीज लाए, और हमारा जो ये मूवमेंट था बॉयकॉट एंड इंडिजियस मूवमेंट, मतलब हमारे खुद के प्रोडक्ट, हमारे खुद की नेशनलिज्म को आगे बढ़ाना और बाहर के लोगों को अंदर रेस्ट्रिक्टेड करना, बाहर की चीजों को रेस्ट्रिक्टेड करना, वो एक्चुअली उन लोगों ने साइड में रख दिया। ऐसा बोलता है ना कि वो लोगों ने हमारी ये मूवमेंट्स क्लोज करवा दी, बिगाड़ दी सारी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने फायदा उठाया हिंदू मुस्लिम के बीच के जो रिलेशंस खराब थे, पाकिस्तान इंडिया के जो बीच के रिलेशंस खराब थे उस हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलो। Bengal was a big province at the time of British rule, which include in the which include the present day Bengal, Bihar, and Odisha. Compared to other states, Bengal was the central point of the national awakening. The impetus and thought for the national movements came from Bengal. In the 1857 revolt, Hindu and the Muslim had collectively fought the English. That's why, through the English strategy of divide and rule, they encouraged communalism and caused division among people. ओके, आगे हमने इंट्रोडक्शन के वक्त पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेम्बर, आपको याद है तो, कि 1857 में ब्रिटिशर ने सबसे पहले बंगाल में, उन लोगों ने बंगाल के वहां पे, बंगाल पे अपना हक जमाया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही लोग बता रहे हैं कि बंगाल वाज अ बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश के जब रूल था, जब 1857 के तब के समय में क्या था, बंगाल सबसे बड़ा स्टेट था, बंगाल वाज अ बिग प्रोविंस। ठीक है,
तो उन लोगों ने क्या किया, विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, उन्होंने तीन स्टेट किए, तीन स्टेट को ऐड किया इसमें, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, कंपेयर टू अदर स्टेट्स। बंगाल वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ द नेशनल अवेयरिंग। अब उन लोगों ने अपना जो मैचिवलियन पॉलिसी था, उन लोगों को तो क्या करना था, डिवाइड और रूल। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी वीकनेस थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में उन लोगों ने राइट्स क्रिएट किए, उन दोनों को रिलीजन के हिसाब से अलग किया, उन लोगों को ऐसे एनकरेज किया मुस्लिम लोगों को कि आप अपना कुछ करो। मतलब वो लोग अपने हिसाब से जब स्ट्रेटेजी बना रहे थे, उस हिसाब से वो लोग यहाँ पे रिलीजियंस, सोशल्स, रिलीजियंस में बीच में दरारें डाल रहे थे। उन लोगों को पता था कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे इशू चल रहे थे, वो लोग फायदा उठा रहे थे, ठीक है। तो तब दे फर्स्ट इंक्लूड द प्रेजेंट बंगाल को इंक्लूड किया, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उन स्टेटों में ये अब ज्यादा स्ट्रेटेजी वो लोग अप्लाई कर रहे थे कंपेयर टू other states. Bengal was the central point of national awakening. The impetus and thought of the national movement came from Bengal. मतलब हम लोगों ने, मतलब क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट करना था, उसका थॉट सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना था, बंगाल से। तो in the 1857 revolt, Hindus and Muslims had collectively fought the English. That's why through the English strategy of divide and rule, they encouraged communalism and caused division among people. अब क्या हुआ कि 1857 में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में, मतलब जो फाइट्स चल रही थी, वो लोग, उन लोगों में जो लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसका फायदा उठाया और उन्होंने डिवाइड रूल पॉलिसी के जो वीकनेसेस थे, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कम्युनिटी को, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को एनकरेज किया, और हिंदू मुस्लिम के बीच उन लोगों ने पार्ट पार्ट डाल दिए, मतलब उन लोगों को अलग कर दिया। अगर पहले वो लोग एक रहते थे यहाँ पे, तो उन लोगों को बहुत अंदरों अंदर झगड़ा करवा के, उन लोगों के बीच में इश्यूज पैदा करके, उन लोगों को डिवीजन, डिवाइड कर दिया। चलो, मतलब दोनों कम्युनिटी को अलग कर दिया। बेटा, यू ऑल हैव डाउट्स, प्लीज आस्क। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज आस्क। और अगर ऐसा भी लग रहा है कि आपको लैंग्वेज, किसी को लैंग्वेज इश्यू है, तो प्लीज लेट मी नो। Okay, beta, you can read. Huh? Victory Curzon, It's Viceroy, ना Viceroy Curzon, ये नाम है। Viceroy Curzon 1899-1905 divided the West Bengal provision into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about administrative effectively. ओके, अब क्या पढ़ा कि, Efficiently. सॉरी, अब क्या था कि ऊपर हमने पढ़ा कि बंगाल इट वाज अ बिग प्रोविंस एट दैट टाइम, ठीक है, बिग बिग प्रोविंस, मतलब बंगाल सबसे बड़ा था। तो अब इतने सारे इश्यू हो रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से, वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, तो उन्होंने क्या किया, पार्ट्स कर दिया, डिवीजन कर दिया, हिंदू मुस्लिम में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हो गया तब से। तो तब क्या किया, बंगाल के जो वाइसरॉय कजन थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल के प्रोविंस को, बंगाल के स्टेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। उसका इरादा क्या था कि हमारे जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एफिशिएंसी, मतलब अच्छे हिसाब से चले। इतने बड़े बंगाल में बहुत इश्यू हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने दो पार्ट्स को डिवाइड कर दिया बंगाल को। दो पार्ट्स कौन से, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ओके, गो, यू कैन रीड इट बेटा। There was a strong opposition to the division of Bengal. When Bengal was divided on 16 October 1905, the whole Bengal observed the day as a the day as National Mourning मॉर्निंग डे, Day. यस। The same day as announcement about boycotting all foreign goods and encouragement to use indigenous goods was made. Not merely Bengalis, but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the vicious feeling of nationalism that was catching up in India. That day, Hindu and Muslim tied Rakhis to each other in the entire Bengal to express their unity. This movement had three major characteristics:
adopt indigenous products, Swadeshi, boycott foreign goods, Yes, adopt national education. yes. You can tick mark these three characteristics, right? Maybe this was an important point आप सबके लिए, तो प्लीज आप ये जो मोमेंट है, जो थ्री कैरेक्टर्स है, इस मोमेंट में आप टिक कर दीजिए, ठीक है? There was a strong opposition of Bengal. अब ऊपर गया था कि बंगाल हो गया दो पार्टी बंगाल से ये डिवीजन हुआ वो दिन the day was 16th October 1905 on which day the 16th October 1905 in which day the Bengal will be divided into two parts, that is East Bengal and West Bengal. वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए. अब 16 अक्टूबर के बाद मतलब जो दूसरी मॉर्निंग हुई तो पूरे बंगाल ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये हमारे लिए एक नेशनल मॉर्निंग डे है. जैसे ही वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए उन लोगों ने दूसरे मॉर्निंग को नेशनल वुमेन्स डे, नेशनल मॉर्निंग डे के हिसाब से ऑब्जर्व किया. ओके, द सेम डे एन अनाउंसमेंट अबाउट बॉयकॉटिंग ऑल फॉरेन गुड्स एंड एनकरेजमेंट टू यूज इंडिजियस गुड्स मैंने वाज मेड. मैंने ऊपर गया था, इसका मतलब क्या है? जो गुड्स हैं और 1905 के बाद जैसे ही ये लोग दो दो पार्ट में डिवाइड हो गया बंगाल, उन दिनों का अनाउंसमेंट भी हो गया कि वो रेस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, बंद किया जाएगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा. और यहाँ इंडियन गुड्स मतलब क्या कि हमारे खुद की प्रोडक्ट, हमारे नेशन की प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट्स जो है उनको एनकरेज किया जाएगा और यहाँ पे उनको ज्यादा से ज्यादा बनाया दिया जाएगा. Not merely Bengalis, but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail the vociferous feeling of the nationalism that was catching up in India. अब जो ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से सिर्फ बंगालीज को नहीं, मतलब बंगाल के लोगों को नहीं, पूरे इंडिया के लोगों को ये बिलीव हो गया कि जो डिवीजन हुआ है वो इस हिसाब से हुआ है कि हमारे यहाँ पे इंडिया की नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया जाए. ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग एक साथ रहकर एक टाई बन के हम लोग आगे बढ़े और हमारा जो नेशनलिज्म है उसको ऊपर लाएं. ठीक है? दैट डे हिंदूज एंड मुस्लिम्स टाइड राखीज टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी. अब उस दिन क्या हुआ, जिस दिन इन लोगों को ये अनाउंसमेंट मिला तो एक फीलिंग आया कि ये बहुत ही गलत फीलिंग है कि ब्रिटिशर्स यहाँ देंगे और हम लोग दब जाएंगे. तो हमारे नेशनलिज्म को ऊपर बढ़ाने के लिए दे आर रेडी, वो लोग रेडी हो गए. उन्होंने पूरे बंगाल में हिंदू मुस्लिम क्या किया, एक दूसरे को टाइड किया, राखी टाइड किया. मतलब उन लोगों के ने ये सब राखी टाइड करके क्या दिखाया कि वी आर इन अ यूनिटी, मतलब एकता दिखाई अपनी कि हम सब एक ही नेशनल के हैं, एक ही नेशन के हैं, एक ही फैमिली के हैं. ठीक है? दिस मूवमेंट हैड थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये जो बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स है उसके थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाज अडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स. मतलब जो अभी अभी हमने पूरा मैंने एक्सप्लेन किया उसमें यही था कि आप स्वदेशी अपने नेशन के प्रोडक्ट अडॉप्ट कीजिए. बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, मतलब फॉरेन के जो गुड्स हैं, बाहर के जो मतलब गुड्स आ रही हैं उसको आप इसको निग्लेक्ट कीजिए, उसको मत यूज कीजिए. स्टॉप यूजिंग द फॉरेन गुड्स एंड अडॉप्ट योर इंडिजिनियस गुड्स. अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन. यहाँ की जो एजुकेशन है हमारे नेशन की, अब आप सबको पता ही होगा, मोस्टली ऑल स्टूडेंट्स आर रियली इंटरेस्टेड आउट ऑफ इंडिया एंड लर्न इन बिग यूनिवर्सिटीज. बट द एक्चुअली मूवमेंट ये क्या कहती है यहाँ पे कि एक अच्छी also built in India also. So third policy is adopt national education. अब ये थ्री कैरेक्टर्स हैं जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगी और आप लोग रीड भी करेंगे. ओके? Guys, you all are present? Okay. हेलो. Yes. ओके, कैसा लगा आपको लेक्चर?
ओके, आपका नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्या है कि जितना अभी आज हमने लेक्चर पढ़ा है वो आप सबको रीड करके आना है, विल आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है? मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने रीड किया है कि नहीं।